گلوری ٹو جیزس۔ جے ایم سی کی مسیح یسوع میں تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، میں خداوند کا شکر گزار ہوں، آج خداوند نے خوبصورت موقع بخشا، اور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج یہ ہمت اور طاقت دی کہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے خداوند کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ سو آئیں میرے ساتھ مل کر خداوند کے کلام پر غور کیجیے، اور آج ہم سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے کہ خداوند مجھ پر رحم کر۔ میں یہ کلام مقدس کی اسٹڈی کر رہا تھا، تو جیسا کہ آج بتیرے ایسے بہن بھائی ہیں جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، آپ کسی بھی بات کو لے کر پریشان ہیں، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا بزنس ٹھیک نہیں ہے، آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی پرابلم ہے، اور وہ بہن بھائی جو شادی شدہ ہیں اور عرصہ دراز سے وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، سو میں آج چاہتا ہوں کہ کلام خدا پر غور کیجیے گا، اور یہ خدا کا کلام آپ کو قوت اور طاقت دے گا، اور یہ خدا کا کلام آپ کو زور دے گا۔ سوئیں میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے، خداوند کے زندہ کلام میں سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو بائبل مقدس میں سے زبور 123 اور اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کلام خدا میں یہ رقم ہے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے۔ سب سے پہلی بات، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات، خداوند کے کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اچھا، جتنے بھی دکھی اور پریشان ہیں، آج پہلے آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کس کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اور کیا آپ جو آسمان پر تخت نشین یعنی کہ زندہ خداوند، کیا آپ اس سے مانگ رہے ہیں یا لوگوں سے مانگ رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے دھوکے کے، اور سوائے ذلت کے، اور سوائے رسوائی کے، لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہاں پر کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف، اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کی آنکھیں کس کی طرف لگی ہیں؟ پہلے اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے آپ پر فوکس کریں کہ آپ کی آنکھیں کس کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اپنا فوکس چیک کریں، آپ کا فوکس کس طرف ہے۔ اپنے آپ پر فوکس کریں، دوسروں کے اوپر سے اپنا فوکس ہٹائیں، اور یہی فوکس اپنے اوپر اور اپنے خدا کی طرف لے کر آئیں کہ آپ خداوند کے ساتھ کیسے۔ پھر بڑی خداوند کے کلام پاک میں بڑی خوبصورت بات، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر، آئے خداوند ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر، آئے خداوند ہم پر رحم کر۔ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جان مجھ پر رحم کر دیں، بہن جی مجھ پر رحم کر دیں۔ کیا کرتے ہیں وہ آپ جب تک زندہ خدا کو حاصل نہیں کرتے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس کے اندر رقم ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یقیناً ہم یسوع سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ ہم پر رحم کر، آئے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ اگر آپ بھی ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے ہیں تو آج کہیں کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ اگر آپ بھی لوگوں کے پاس جا کر ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے ہیں تو آپ بھی خداوند سے کہنا شروع کر دیں کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزوں، جب آپ اس کو پکاریں گے، وہ آپ کی پکار کو سن کر جواب دے گا، رسپانس دے گا، وہ آپ کو فل فور بلیس کر دے گا، وہ فل فور آپ کو برکتوں سے لبریز کر دے گا۔ میرے عزیزوں، کیا آپ خداوند کو کہتے ہیں کہ آئے خداوند ہم پر رحم کر؟ یہاں پر لکھا کہتا ہے کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے
तंग आ गए हैं, हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। अगर आप भी जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए, अगर आप भी लोगों की दुख बर्दाश्त करते हुए, अगर आपको भी लोगों ने परेशान किया हुआ है, अगर आपके गिर्द भी परेशानी है, अगर आपके इर्द गिर्द भी मुश्किल तरीन हालात है, तो आज खुदावंद के पास आ जाए और उसको कहें कि आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, और फिर देखें कि खुदावंद आप पर कैसे रहम करता है। मेरे अजीजों, अगर हम मरकस की अंजील उसके 10 बाब को और उसकी 46वीं और 47वीं आयत पर देखें तो यहाँ पर लिखा है, और वो यरू में आए, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर के यीशु नासरी, ये सुनकर के यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, यहां पर गौर करें कि अंधा शख्स जो है, मेरे अजीजों, अंधा तमाई का बेटा जो बरतमाई है, यहाँ पर लिखा है पाक कलाम के अंदर कि जब उसने यीशु की बाबत सुना कि वो है, आप भी जानते हैं यीशु के बारे में कि यीशु अंधों की आंखें खोल देता है, यीशु लंगड़ों को चलने की कुव्वत देता है, यीशु तमाम मुर्दा को जिंदा कर देने की कुदरत और कुव्वत रखता है, यीशु सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आपकी परेशानी क्या है उसके सामने? आपकी मुसीबत उसके सामने क्या है? आपकी बीमारी यीशु के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। बस घुटने टेक दे और कहे कि आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, आए यीशु मुझ पर रहम कर। और जैसे इस अंधे शख्स ने, और मैं आपको एक और खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है, और बहुतों ने उसे डांट कर, बहुतों ने उसे डांट कर चुप करवाने की कोशिश की गई। वो चुप कर जा, आपको भी लोग चुप करवा रहे हैं, आपको भी लोग कह रहे हैं, आप अपने यीशु मसीह नासरी के कदमों में आ जाए, झुक जाए उसकी पाक हजूरी में आकर, यीशु की हजूरी में आ जाए। और जिस तरह अंधे शख्स ने, अंधे बरतमाई ने कहा कि आए यीशु मुझ पर रहम कर, आप भी कहें कि आए यीशु मुझ पर रहम कर। आज ही आप कहें आए यीशु मुझ पर रहम कर। और लिखा है तो लोगों ने उसको डांटा, बहुतों ने उसको डांटा और चुप करवाने के लिए कहा, चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। लिखा है वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आपको भी चुप करवाया जाएगा, लेकिन आप कहे कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और फिर पाक कलाम के अंदर लिखा है, यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। जब आप चिल्ला कर पुकारेंगे ना, वो जो चुप करवाने वाले हैं आपको, उन्हीं को यीशु कहेगा कि इसको मेरे पास लेकर आओ, इसको बुलाओ, मैं इसको मिलना चाहता हूं। और मेरे अज़ीज़ों, लिखा है पाक कलाम के अंदर, कलाम खुदा के अंदर रकम है, यहाँ पर हमें मिलता है, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। मेरे अज़ीज़ों, आज आपको भी कहा जाए खातिर जमा रख, और वो आपको बुलाता है। मैं आज आपको कहता हूँ, मैं खुदा का खादिम होने के नाते मैं कहता हूँ कि खातिर जमा रखें। खुदावंद आपको बुलाता है, वो आपके मसले को आज ही अभी इसी वक्त सॉल्व करना चाहता है, वो आपकी परेशानी को अभी इसी वक्त ख़त्म करना चाहता है, वो आपके मुश्किल तरीन हालात को अभी इसी वक्त ख़त्म करना चाहता है, वो आपकी बीमारी को अभी इसी वक्त ख़त्म करना चाहता है, वो आपकी परेशानी को अभी इसी वक्त ख़त्म करना चाहता है, वो अभी इसी वक्त आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करना चाहता है। पुकारें उसको, पुकारें उसको, कहें क्या आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए खुदावंद मुझ पर रहम कर। और मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम के अंदर अगर आप देखें तो लिखा है पाक कलाम के अंदर कि वो तरसती जान को क्या करता है, शेर करता है। जबूर नंबर 107 की 9 आयत के अंदर रकम है, क्योंकि वह तरसती जान को शेर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है।
तरसती जान को सैर करता है, वो तरसती जान को सैर करता और भूखी जान को नेमतों से माला माल कर देता है। आप भी माला माल होना चाहते हैं? दुनिया में जिसको भी देखो वो सब माला माल होना चाहते हैं। अगर आप भी माला माल होना चाहते हैं, बरकतों से लबरेज होना चाहते हैं, तो आप जो तरस रहे हैं, अपने जिंदा खुदा के हसूर में आ जाए, उसकी हसूरी में आकर झुके। वो आपको बरकत देगा, वो आपको ब्लेस करेगा। वो तरसती जान को सैर करता है। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करता है। आप कहें खुदावंद मैं जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गया, मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब आप बुलंद आवाज में चिल्ला चिल्ला कर पुकारेंगे तो वो आप पर रहम कर देगा, वो आप पर रहम करेगा। और जब वो आप पर रहम करेगा, आपकी बीमारी जैसी भी क्यों ना हो, आपकी परेशानी जैसी भी क्यों ना हो, आपके हालात जैसे भी क्यों ना हो, फिलफौर आपके हालात दुरुस्त हो जाएंगे। फिलफौर आपके घर के अंदर से परेशानी जाती रहे, फिलफौर आपके घर से मुसीबत जाती रहेगी, और फिलफौर खुदा का जलाल आपके साथ होगा। मेरे आशीषों, आज भी आपको पुकारने की जरूरत है। कहें कि आ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मैं तमाम बहनों से, तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि घुटनों के बाल होकर, घुटनों के बाल होकर कहें खुदावंद मुझ पर रहम कर। मैं तमाम बहनों के लिए, तमाम भाइयों के लिए चाहता हूँ कि आप घुटनों के बाल हो जाए अपने खुदावंद के हसूर में। जब आप घुटनों के बाल होकर कहेंगे कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो खुदावंद आप पर रहम करेगा। मैं हर उस बहन के लिए, हर उस भाई के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो परेशान है, दुखी है, लाचार है। मैं अभी आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप ईमान रखते हैं, अगर आप यकीन रखते हैं, मैं तमाम उन बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह नासरी पर यकीन रखते हैं, जो खुदावंद पर यकीन रखते हैं, मैं खुदावंद का खादम अभी आपके लिए दुआ करूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ घुटनों के बल होकर ये प्रेयर सुननी। जब आप तक ये दुआ पहुंचे, जब आप तक ये कलाम पहुंचे, तो जो कुछ खुदावंद के कलाम में से आपके सामने रखा गया है, आपने बड़े ईमान और बड़ी यकीन के साथ, अगर आपके पास औलाद नहीं है तो ईमान से मेरी बहन, आपने अपने कमरे के अंदर, अपने रूम के अंदर घुटनों के बल होकर इस प्रेयर को सुनना है। आप बरकत की गवाही देंगे, आपको खुदा इसी वक्त बरकत देगा जिस वक्त आप इस वीडियो को वॉच करेंगे और इस दुआ को सुनेंगे, और उसी के साथ जब आप दुआ करेंगे तो फौर खुदा आपको बरकत देगा। अगर आपके हालात परेशान है, अगर आप परेशान है, अगर आपके घर के अंदर परेशानी है, अगर आपके हालात ठीक नहीं है, तो आए मेरे साथ मिलकर खुदावंद के हुजूर में झुकें। मैं तमाम अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। बड़े बोझ के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ मैं कहता हूँ कि खुदावंद आपकी जिंदगी में भी काम करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने आप को घुटनों के बल कर लें। खुदावंद अभी इसी वक्त काम करेगा। आए खुदावंद यीशु, मैं अपनी इस बहन को, अपने इस भाई को, तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को, देखने वाले बहन भाइयों को बरकत देता हूँ। आए खुदावंद यीशु, एक एक की जिंदगी के अंदर मैं आपकी बरकत चाहता हूँ। देख खुदावंद यीशु, जिनके हालात इस वक्त डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो जॉब की वजह से परेशान है, जो बिजनेस की वजह से परेशान है, जो खुदावंद अपने जिस्म के अंदर बीमारी की वजह से परेशान है, इनकी बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती यीशु के नाम से जाती है। जो बीमारी को लेकर परेशान है, जिस भी किस्म की बीमारी है, खुदावंद हर किस्म की बीमारी से इनको रिहा कर। खुदावंद हर किस्म की बीमारी इनकी जिंदगी से जाती रहे, हर किस्म की बीमारी से ये आजाद हो जाए। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है, शादी को अरसा दराज हो गया, मैं इनको बरकत देता हूँ। मेरी बहन, मैं आपको यीशु के नाम से बरकत देता हूँ। आपका बंद रहम यीशु के नाम से खुल जाए। खुदाम जिनके पास बेटे हैं और बेटियां नहीं, उनको खूबसूरत बेटियों जैसी बरकत देना, और जिनके पास बेटियां हैं और बेटे नहीं, उनको बेटों जैसी बरकत देना। खुदाम यीशु, इसी वक्त काम करना। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मैं उनको बरकत देता हूँ। खुदाम जहां भी ये इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, इनको बरकत पर बरकत देना। इनकी घर के अंदर बरकत चाहता हूँ, इनके खानदान के अंदर बरकत चाहता हूँ, इनकी फैमिली के अंदर बरकत चाहता हूँ, और खुदावंद तेरे लोगों के ऊपर बरकत पर बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावंद यीशु, इनकी तमाम दिल की मुरादों को पूरा कर देना। नेक इरादे, नेक मंसूबे आपकी तरफ से पूरे हो जाते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से इनको बरकत देता हूँ। कामयाब कर, सरफराज कर, बरकत पर बरकत देना। हर एक की जिंदगी के अंदर खुदावंद जलाली काम करना। और जितने भी मेरे बहन भाई इस
वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और जो बहनें जो भाई इस वक्त घुटनों के बल होकर खुदाम जिन्होंने मुत्तफिक होकर दुआ की है, मैं उनके लिए बरकतों को रिसीव करता हूँ। और खुदाम वो भी बहन भाई जो दुखी परेशान है, और खुदाम तू उनकी जिंदगी के अंदर काम कर। ऐ खुदाम तू सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। इब्ने दाऊद इन पर रहम कर, ऐ खुदाम दिन पर रहम कर, ऐ खुदाम मेरी इस बहन पर रहम कर जिसके पास औलाद नहीं है, और इसको लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, लोग इसको ताने देते हैं। इसकी जिंदगी में मौजज़ा कर, इसको बरकत दे, इस मेरी बहन को बरकत दे, तमाम उन बेटियों को, तमाम उन बहनों को बरकत देता हूँ जो लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। इनके खुदा जिस्म के अंदर, बदन के अंदर कोई भी कमजोरी, कोई भी वीकनेस है, आपके यीशु नाम से जाती रहे। इसी वक्त शिफा को ले, इसी वक्त शिफा को ले, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मैं ईमान और यकीन रखता हूँ कि आप बहुत जल्द गवाही देंगे। खुदा हम आप सबके साथ हो।